Everyone. So today we are starting with a new series that is on writing section. So basically we are starting with notice writing. So as we know, in class 12 we have lots of sections. First is on prose, poetry, and then it is the writing section. So, and also there is reading section, so we will be coming later on this section, but we are starting the third section, that is the writing section. So the last video was on the Keeping Quiet poem, and many of you have seen this, I hope. And if not, please go and check out, because this is a very important poem and very nice poem also. And most of the poems that are present in class 12 book, in the poetry section, they are initially very motivating, and you will feel very nice after reading the poem. And once you understand, it is very easy to write it on your own way. Okay, so without any further ado, let's get started. So we are starting with notice writing. So notice writing is very easy, and you can like immediately understand the format, because it is like, I hope you have seen this notice writing, or you have gone through this notice writing previous also, because it was also present in class 11 and 10 also. So notice writing is like something which everyone should be aware of, because you might have seen in most of the newspapers also, then some headlines in the social network also. So notice writing is something which is very familiar. Okay, so see, this is the first part of the writing section, and the writing section has many much more to do, much more to go. And there are many other things that you will come across, but first we are starting with notice writing. Okay, so notice writing, first thing, very importantly, that we will start the format. Okay, so this is the format, that I have written for you, that I have made a black image, so that you can easily take a printout also if you want. Okay, and you can keep it in your notes. So now, if anyone wants to make notes, then how will you make it? Okay, so for this notice writing, first of all, you write your format. Okay, first thing first, that is, you need to make a format in your page. Okay, what is the format of the notice writing? Then also you need to write the key highlights of this notice writing, that what are the important points that I should remember. Okay, so you will write remembering the points or key points to remember. Okay, and then you will write, or you will go for an example. Okay, and I will also share some questions related to notice writing later on, but let's focus on notice writing format now. Okay, so first thing is that we will start the notice writing. Okay, with this first thing is name of the issuing authority. Who is the issuing authority? The authority which is issuing this notice, the name of the issuing authority must be present in the first, and that also in the middle. Okay, so see, the name of the issuing authority is present in the middle of the page. Okay, next thing is, you need to write notice. You need to write notice, that too in capital letters. You need to write the notice, okay, in capital letters. Okay, and if you want, you can also underline it. Okay, if you want, you can underline it also. Okay, so first thing you understood, that you need to write the name of issuing authority, then you need to write notice. Okay, next comes date on the left hand side. Okay, left hand side, this is left, this is right. So left hand side, you need to write the date. How to write, we will come across with a sample. Okay, I bought an example of this notice writing, so you will be understanding that how exactly you need to write it. Okay, so name of issuing authority, then you need to write the notice, and then comes date. Till now it's okay. Okay, so moving forward, next you need to write the heading or title, whatever the thing about notice writing, the topic of the notice writing, you need to write here the heading or the title. Okay, next comes the body.
where only 50 words, okay, within 50 words you need to complete the body, and it should be very up to the mark, like it should be up to the details. Okay, in the question whatever the details are present, you need to add on this on the body. Okay, so body, you need to write the brief means crisp details answering what, when, where and who. Like you need to answer this W's. Okay, what is this notice writing about, then when did the occasion happen, then where, and who is conducting it, you need to write this. Okay, so 4 W's. Okay, 4 W's you need to mention, that is who, when, where and why. Sorry, who, when, where and what. Okay, नेक्स्ट इज कीप इट अंडर 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स के अंदर अंदर हमें ये पूरा नोटिस राइटिंग कंप्लीट करना है. ओके, सो फर्स्ट इज नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, देन नोटिस, देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड you need to write date, then on the middle you need to write the heading or the title, and then comes the body which should be crisp and brief. Okay, where 50 words are only allowed. Okay, only 50 words, keeping only those details which are very very important, without which the notice cannot be concluded. Okay, what, when, where and who is conducting this, you need to write. Next comes the signature. You need to write your name. Okay, and the name should be in block letters. You sometimes you can write in block letters also, and also you can write it in running letters. What is running letter? Like this, if your name is Rahul, so this is Rahul. Okay, this is running letter. And what is block letter, you know? Okay, this is block letter. So here you can write in block letters or you can write in running letters. Next you need to write the designation. Now what is designation? Means the in that issuing authority, what is your designation, what is like what is your position. Maybe you are a cultural secretary, or you may be the principal, or you may be the teacher, you may be the head girl or head boy. Okay, so you need to write it in the designation. Okay, next, so I hope this format is clear. Okay, again let's revise it. First, name of the issuing authority. Second, notice you need to write that too in block letters. Next, date is the third one. Next, heading or title. Okay, what is the notice about. Next, body. Okay, this is the fifth, body, which should be within 50 words, and it should answer what, when, where and who. Signature should be there. It can be in block letters or running letters. Next is designation. Designation must be the position of your or what is your authority, like in that issuing authority, or in that might be if it is related to school, then you might be a teacher, you might be a student, or you might be a principal or head boy, head girl. Okay, next, what are the rules that you must remember while writing notice writing. ओके, सो नोटिस राइटिंग लिखने के टाइम में ऐसे कौन से की रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं. बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, इफ़ यू लाइक डोंट राइट दिस ओके इन अ नाइस फॉर्मेट, इन अ करेक्ट फॉर्मेट, देन इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड. ये एक्सेप्टेड नहीं रहेगा. तो कुछ रूल्स है आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू डोंट रिमेंबर दिस रूल्स यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेस अप. ओके, सो सी, हमने ये जो नोटिस राइटिंग लिखा है, ये एक बॉक्स के साथ लिखा है, एंड दिस बॉक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नोटिस राइटिंग. ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड नोटिस राइटिंग में हम बॉक्स लिखते हैं. ठीक है, हम ये ड्रॉ करते हैं. इससे हमारा पूरा नोटिस राइटिंग क्या होता है, कॉन्क्लूड होता है. विदाउट अ बॉक्स इट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, एंड बॉक्स के लिए 1 मार्क कट जा सकता है. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलवेज ड्रॉ अ नीट बॉक्स अराउंड योर नोटिस. नोटिस के अराउंड हमें क्या ड्रॉ करना है, एक बॉक्स, एक नीट बॉक्स ड्रॉ करना है. नो डबल लाइन्स, ओनली सिंगल लाइन. दिस इज अ स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट इन मोस्ट राइटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, मोस्ट राइटिंग स्टैंडर्ड्स में हम ये स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, नेक्स्ट, जो वर्ड नोटिस होता है वो हमेशा बोल्ड या कैपिटल लेटर्स या ब्लॉक लेटर्स में हमें लिखना पड़ता है इन दिस वे.
ठीक है. सो द वर्ड नोटिस शुड बी रिटन इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स. सेंटर्ड होना चाहिए. देख लो इधर सेंटर में हमने नोटिस लिखा है, सो इट शुड बी इन द सेंटर एंड इट शुड बी बोल्ड इनफ, इट शुड बी कैपिटल लेटर्स, इट शुड बी सेंटर्ड एंड एट द टॉप इट शुड बी प्रेजेंट. ओके, एट द टॉप. ठीक है, जैसे मैंने फॉर्मेट लिखा है वैसा ही होना चाहिए. इट के नॉट बी लाइक दिस कि नोटिस हमने इधर लिख लिया और हेडिंग हमने इधर लिख लिया, या फिर डेट हमने राइट हैंड साइड में लिख लिया. तो ये हो नहीं सकता. ठीक है, यू नीड टू फॉलो दिस फॉर्मेट. ओके, नेक्स्ट द हेडिंग. मेक इट कैची. ये कैची होना चाहिए. ये सीजन नहीं है. इट शुड बी कैची, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी क्लियर, सो दैट जो रीडर है वो जो हेडिंग है उसको देख कर ही उसे समझ में आ जाए कि व्हाट इज दिस नोटिस अबाउट. ओके, सो मेक इट कैची, इट शुड बी ब्रीफ, इट शुड बी क्लियर, इट शुड बी क्रिस्प. ओके, सो दैट द रीडर नोज एग्जैक्टली what's about the notice instantly उसे जो हेडिंग है उसे देखकर ही समझ में आ जाए कि what is this about. ओके, नेक्स्ट आता है 5 W's. 5 W's. द बॉडी मस्ट आंसर व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, हु इज फॉर, कौन कर रहा है, वेयर इट इज टेकिंग प्लेस, कहाँ हो रहा है, जगह क्या है, वेयर इट इज स्केड्यूल्ड, कब हो रहा है, एंड whom टू कॉन्टेक्ट. अगर हमें कोई डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हम किसको कॉन्टेक्ट करेंगे, whom टू कॉन्टेक्ट. ओके, सो हियर देर आर 5 W's टू आंसर. ठीक है, 5 W's टू आंसर. ठीक है, 5 W's क्या है, who is conducting, where it is conducted, then whom to contact if needed, then what is happening, क्या occasion है, and क्या बोलते हैं कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो what, who, where, when and whom. 5 W's are very very mandatory. ठीक है, ओके. तो ये था हमारा की रूल्स. पहला, बॉक्स होना चाहिए मैंडेटरी. हेडिंग में जो है वो कैची होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. जो हमारा नोटिस वर्ड है वो बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड लेटर में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में होना चाहिए, एंड वो भी जो है सेंटर में प्रेजेंट होता है एंड एट द टॉप प्रेजेंट होता है. ठीक है, एंड 5 W's जो है वो हमारा नोटिस में प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, नाउ दिस इज अ सैम्पल. ठीक है, मैं एक सैम्पल लेके आई हूँ, एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ, सो दैट एवरीथिंग जो भी अदर डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगी. कैसे डेट को लिखना पड़ता है, ठीक है, कैसे अगर अथॉरिटी बॉडी है तो उसको कैसे लिखना होता है, नोटिस कैसे लिखना होता है, एवरीथिंग यू नीड टू राइट. ठीक है, अच्छा, और एक 2 गलती है इसमें. ठीक है, इस सैम्पल में 2 मिस्टेक्स है, वो यू नीड टू नोटिस. ठीक है, यू नीड टू नो कि कहाँ गलती मैंने किया है. 2 जगह में मैंने गलती किया है एंड यू नीड टू मेक श्योर कि वो गलती आप ढूंढ सको. ठीक है, सो मैंने ये जानबूझ के गलती किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैंने भी ऐसे गलती किया तो क्या हो सकता है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. तो इधर जो है हमने ऑथोरिटिंग बॉडी लिख लिया है, दैट इज दी क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल्शियर पब्लिक स्कूल. ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख लो. ठीक है, या एक्सेल्शियर पब्लिक स्कूल लिख लो. ठीक है, एंड यू नीड टू राइट द सिटी नेम. ठीक है, न्यू दिल्ली. ठीक है, इसके बाद क्या आना चाहिए था, इसके इमीडिएटली इंस्टेंटली क्या आना चाहिए था. देख लो एक बार फॉर्मेट देखो. इशूइंग अथॉरिटी के बाद नोटिस आना चाहिए था, और इसमें क्या है, इसमें नोटिस गिवन ही नहीं है. दैट मीन्स इट इज रॉन्ग. ये रॉन्ग है, राइट. ओके, अभी देखो, सो इसको हम अभी ठीक करेंगे. ठीक है, इसको हम अभी ठीक कर लेते हैं. ठीक है, देख लो. सो इधर हम नोटिस लिख लेते हैं, राइट. देखो मेरा ये गलत तो नहीं होता है, नहीं. देखा, तो इधर रॉन्ग हो सकता है, करेक्ट. अच्छा, देखो देखा. ओके, क्लियर है, क्लियर है. नोटिस हमने लिखा. ओके, ठीक है, ठीक है. सो देखो हमने ये देख लिया ना
कि ये जो हमारा हमने क्या किया था, नोटिस नहीं लिखा था, राइट, नोटिस नहीं लिखा था। सो देखो हमने क्या किया, नोटिस को ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये गलती थी, राइट, ये नोटिस अगर नहीं लिखा तो ये नोटिस राइटिंग है कि नहीं पता कैसे चलेगा। सो नोटिस यू नीड टू राइट, ठीक है, यू नीड टू राइट दैट टू इन ब्लॉक लेटर्स। देखो हमने बोल्ड और ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, टॉप में लिखा है और सेंटर में भी लिखा है, करेक्ट, ओके। नेक्स्ट आता है डेट। अब डेट कैसे लिखना होता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने क्या लिखा है, 26 जून 2026, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर कैसे लिख सकते हो, 26 जून 2026, कोमा देके, ठीक है, कॉमा देके यू कैन राइट दिस, ओके। तो ऐसे डेट लिखना है। इसके बाद आता है हमारा हेडलाइंस, ठीक है, हेडलाइंस लिखना है, हेडलाइंस या फिर हम कह सकते हैं टाइटल। सो एनुअल इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि एक इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है एंड उससे रिलेटेड क्या है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। दैट मीन्स इट इज स्केची, इट इज ब्रीफ एंड इट इज क्रिस्प। इसको देखकर इंस्टेंटली आपको पता चल रहा है कि व्हाट इज दिस नोटिस अबाउट, ओके। सो इट इज एनुअल इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, आपको 5 W's को फॉलो करना है। देखो आपको मैं पहले रीड करती हूँ, देन वी विल सी कि 5 W's इधर है या नहीं, ओके। So this is to inform all the students of class 9 to 12 that the school is organizing its 15th annual inter-school debate competition. ठीक है? The details of the events are date, time, venue and किस टॉपिक पे होने वाला है ये इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, ये भी हमें गिवन है। दैट इज इज AI रिप्लेसिंग ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्या ह्यूमन क्रिएटिविटी को AI रिप्लेस कर रहा है। वी नो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, ठीक है, अच्छा, ऑन डिमांड है। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट मस्ट सबमिट their names to their respective class teachers latest by 3rd July 2026. Auditions for the final selection will be held in the activity room on 5th July. For any further clarification, please contact the undersigned श्रेया शर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी। अभी देखो, तो हमने देखा था कि 5 W's हमें फॉलो करना है, 5 W's। सो 5 W's फॉलो हो रहा है या नहीं देख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सो ये देखो हमने पहले बोला कि व्हाट होना चाहिए। सो व्हाट है इधर, क्या कौन सा ओकेशन है, व्हाट इज द ओकेशन, इट इज द एनुअल 15th एनुअल इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। हमारा व्हाट हो गया, ठीक है, ये व्हाट था। दूसरा क्या है, द सेकेंड डिटेल क्या है कि डेट हमें गिवन है, दैट मीन्स हमें डेट भी गिवन है जो कि हमें व्हेन कहता है, ठीक है, व्हेन इज द when is the competition going to conduct. Then आता है टाइम, कब, अगेन ये भी when में आता है, what is the timing, ठीक है। दूसरा आता है वेन्यू, ठीक है, वेन्यू मतलब वेयर, ठीक है, देखो ठीक है, वेयर भी इधर हो गया। दूसरा क्या है कि टॉपिक भी है, ये हमें टॉपिक भी गिवन है, ठीक है, ये एडिशनल हो गया। नेक्स्ट आता है ये देखो व्हाट, व्हेन, वेयर एंड फिर आता है हु इज कंडक्टिंग, हमारा स्कूल कंडक्ट कर रहा है तो हु भी इसमें आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, होम टू कॉन्टेक्ट, तो इधर हमें गिवन है कि कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए हमें किसको कॉन्टेक्ट करना है, द अंडरसाइंड दैट इज श्रेया शर्मा। तो ये क्या है, हुम, किसको हमें किससे कांटेक्ट करना है। सो व्हाट इज ऑल्सो देयर, व्हेन इज ऑल्सो देयर, वेयर इज ऑल्सो देयर एंड whom is also there and who is conducting, it is conducted by our school. So school conduct कर रहा है तो school is who, ठीक है। So 5 W's जो है वो क्या हो गया है, 5 W's इधर कवर हो गए हैं, ठीक है, इधर मेंशन है। दैट मीन्स योर नोटिस इज एग्जैक्टली फाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है देखो, नेक्स्ट हमने कैसे कंक्लूड किया, श्रेया शर्मा एंड उसके बाद कल्चरल सेक्रेटरी। ये क्या है, हमारा डेजिग्नेशन, दिस इज आवर डेजिग्नेशन, ठीक है, ये हमारा डेजिग्नेशन है। क्या है ये, डेजिग्नेशन है।
ठीक है। सो कल्चरल सेक्रेटरी है हमारे श्रेया शर्मा, सो उनको हमें फर्दर कंटेक्ट करना है, ठीक है। सो ये हमारा सैम्पल था जो हमने पूरा कंप्लीट किया। अब दूसरा गलती क्या है, मैंने बोला था कि 2 गलतियां हैं, एक हमने ऑलरेडी देख लिया, दैट इज नोटिस हमने नहीं लिखा था, राइट। अब दूसरा गलती क्या है बताओ। दूसरा गलती ये है कि इधर हमने बॉक्स नहीं दिया है, वी हैव नॉट कंक्लूडेड इट थ्रू अ बॉक्स, एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू ऐड अ बॉक्स टू कंक्लूड योर नोटिस, ठीक है। सो वंस अगेन लेट मी revise the thing for you. So first of all you need to write the issuing authority, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको नोटिस लिखना है, ठीक है। नोटिस ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ठीक है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है, एंड सेंटर में लिखना है और टॉप में लिखना है। फिर आता है डेट, जैसे कि आज का डेट क्या है 26 जून, सो यू कैन राइट 26 जून, ठीक है, कॉमा 2026, या फिर 26 जून, TH यू कैन ऐड। फिर आता है हेडिंग या टाइटल, ठीक है। हेडिंग या टाइटल जो है वो कैची होना चाहिए, वो ब्रीफ होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, ताकि इंस्टेंटली जो रीडर है उसे समझ में आ जाए कि व्हाट इज दिस नोटिस अबाउट। नेक्स्ट आता है बॉडी, जो बॉडी है वो ब्रीफ डिटेल्स होना चाहिए, विच शुड आंसर 5 Ws, ठीक है, 5 Ws। नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर जिसके बारे मतलब जो हमारा जो लिख रहा है नोटिस वो लिखता है, एंड मेक श्योर यू आर नॉट गिविंग योर ओन नेम इन दिस प्लेस। सिग्नेचर की जगह अपना खुद का नाम नहीं लिखना है। मान लो एक लड़की है, जैसे कि उसका नाम है श्रेया। अब श्रेया ने अपना नाम लिख लिया, बोर्ड एग्जाम है और उसने श्रेया नाम लिख लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यू डोंट नीड टू राइट योर ओन नेम, यू नीड टू राइट अ हाइपोथेटिकल नेम। हाइपोथेटिकल नेम मतलब कि एक फॉल्स नेम, ठीक है, जैसे कि अंजलि, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। एंड जो टाइटल है वो भी फेक होना चाहिए, ठीक है। एंड नेम जो है वो ब्लॉक लेटर्स में भी हो सकता है या फिर रनिंग लेटर्स में हो सकता है, ठीक है, या तो रनिंग लेटर्स में। एंड फिर लास्टली यू नीड टू राइट डेजिग्नेशन एंड एंड योर नोटिस विद द हेल्प ऑफ योर बॉक्स। एक बॉक्स देकर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव कंक्लूडेड योर नोटिस राइटिंग, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिस राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो मैंने कंप्लीट करवा दिया। एंड इफ़ यू वांट आई विल बी ऑल्सो गिविंग सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। तो नोटिस राइटिंग के लिए मैं सोच रही हूँ कि और एक वीडियो भी बनाऊँ जिसमें कुछ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल्सो, एंड ये आई थिंक बहुत ईजी है। और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि मतलब देखो एग्ज़ाम के टाइम में ये जो हमारा वीडियो है ये थोड़ा 25 मिनट्स तक जाएगा, ठीक है। तो इतना लंबा वीडियो जो है हम एग्ज़ाम के टाइम नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि शॉर्ट्स जो है, शॉर्ट्स के सेक्शन में मैं नोटिस राइटिंग को 1 मिनट में कैसे पूरा रिवाइज करना है वो करवा दूंगी, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग समथिंग एल्स, तो वो आपको देखने को मिलेगा विद इन सम वीक्स यू विल बी गेटिंग नोटिफाइड। सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको इंस्टेंटली पता चले कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। और एक चीज़, पोस्ट सेक्शन देखना, ठीक है। पोस्ट सेक्शन में मैं पहले ही बता देती हूँ कि कौन सा आने वाला है। सो इफ़ यू आर नॉट नोटिफाइड देन हाउ विल यू कंप्लीट योर कोर्स, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नोटिस राइटिंग ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का नहीं है, ये क्लास 11 का भी है, क्लास 10 का भी है। द सेम फॉर्मेट, नोटिस राइटिंग क्लास के हिसाब से चेंज नहीं होता, सो इसका फॉर्मेट सेम ही है। आपको जस्ट फॉर्मेट क्लियर करना है, एंड आई थिंक द फॉर्मेट इज क्लियर ऑल्सो। मैंने कितनी बार रिपीट किया है थ्रू आउट दिस लेक्चर, राइट। सो ये नोटिस राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये इसका जो है 4 मार्क या 5 मार्क का आता है, शायद 4 मार्क का आता है। एंड बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है और दूसरा क्वेश्चन दिया होता है, एंड उसके बीच में और होता है, सो यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ इट, ठीक है। सो 2 मतलब नोटिस राइटिंग ही होता है, बट 2 डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो जो इजी लगता है जिसमें ज़्यादा डिटेल्स है वो हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो ये नोटिस राइटिंग तो हमने कर लिया, एंड मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा वीडियो लाऊंगी 10 मिनट्स और 15 मिनट्स का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एंड
और मैं सोच रही हूँ कि उसको फिर नोटिस राइटिंग को भी रिवाइज करवा दूंगी इन द शॉर्ट्स, सो दैट यू कैन ईजिली कंप्लीट दिस रिविजन वाइल योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन। एंड नोटिस राइटिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा वीडियो भी आएगा। सो नोटिस राइटिंग मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि नोटिस राइटिंग इज़ वेरी स्मॉल, एंड आई होप विद दिस वीडियो ओनली यू विल बी एबल टू कंप्लीट द होल नोटिस राइटिंग। एंड अच्छा, अभी क्या करना है, अब नोटिस राइटिंग तो हमने सीख लिया, अब कैसे इसको कैसे करना है प्रैक्टिस। सो एक क्वेश्चन, एज यू नो यू आर दिस जनरेशन के इंसान, तो आपको जेमिनाई में जाना है, ठीक है, या जो भी चैट जीपीटी या गूगल बोलना है, ऐसे पूछना है कि गिव वन क्वेश्चन फॉर नोटिस राइटिंग क्लास 12 और क्लास 10 और क्लास 11, जो भी क्लास के आप है। एंड आपको फिर एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको कॉपी में लिख कर, ठीक है, कॉपी में लिख कर देखना है वेदर यू आर एबल टू राइट और नॉट। फर्स्ट आप देख कर लिखोगे कि फॉर्मेट को देख कर लिखना है, दूसरी बार यू नीड टू राइट इट ऑन योर ओन, एंड यू नीड टू ऑल्सो चेक कि कौन सा रॉन्ग हो रहा है, कौन सी जगह में मुझे और इम्प्रूवमेंट लाना है। सो इट रियली हेल्प्स, ओके। एंड एक मिस्टेक डायरी बना दो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए एक मिस्टेक डायरी, एक छोटा सा, मतलब एकदम 10 पेजेस का मिस्टेक डायरी, मतलब जिसमें आप लिख लो कि इसमें नोटिस राइटिंग में मैं भूल जा रहा हूँ बॉक्स बनाना, या नोटिस जो है नोटिस लिखना मैं भूल जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे करके यू नीड टू राइट द थिंग्स, ठीक है। एंड ये था एक टिप। एंड ऐसे ही प्लीज़ सपोर्ट, खुद को भी सपोर्ट करो ये वीडियो देखकर, और मुझे भी सपोर्ट करो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू इट। एंड ऑल्सो दूसरों को शेयर करो ताकि एवरी वन गेट्स द बेनिफिट ऑफ इट। एंड ठीक है, और मैं टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, थैंक यू।